بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں مخالفین کی بڑی وکٹیں گرانا شروع کر دی ہیں۔ جاں مدد علی مسلم لیگ فنکشنل کو خیر بات کہہ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ فنکشنل کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے رکن سندھ اسمبلی جاں مدد علی کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد بھی چند دن کے دوران پیپلز پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں بڑی وکٹیں گرانا شروع کر دی ہیں۔ سابق گورنر آپ کو بتائیں کہ نواز لیگ کے عرفان اللہ مروت فنکشن لیگ کے مزید رہنما بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اہم اور تازہ خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پیپلز پارٹی نے سندھ میں مخالفین کی بڑی وکٹیں گرانا شروع کر دی ہیں۔ جاں مدد علی مسلم لیگ فنکشنل کو خیر بات کہہ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ فنکشنل کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے رکن سندھ اسمبلی جاں مدد علی کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے اور سندھ اسمبلی نے بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات یہی موصول ہو رہی ہیں کہ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد بھی چند دن کے دوران پیپلز پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اسد صہیب سے۔ اسد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کافی وکٹیں گرائی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سابق جو گورنر ہیں وہ بھی کچھ دن میں پیپلز پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی جب سے ایم کیو ایم کے مختلف حصے بنے اس کے بعد سندھ میں اپنے قدم جو ہے مزید مضبوط کر رہی ہے۔ مسلم لیگ فنکشنل کے کئی اہم رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ امتیاز شیخ، اس کے علاوہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد، جن کی دبئی میں سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عشرت العباد کے صاحبزادے کی شادی میں بھی آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے خود شرکت کی تھی اور خبریں یہی آ رہی ہے کہ آئندہ چند روز میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اب ختمی مراحل میں ہیں اور آئندہ چند روز میں ڈاکٹر عشرت العباد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پر شامل ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وکٹ پیپلز پارٹی گرانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ عرفان اللہ مروت جو مسلم لیگ نون سندھ کے اہم رہنما ہیں، کسی وجوہات کی بنیاد پر وہ پارٹی کی قیادت سے ناراض ہیں، ان پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ورکنگ کر رہی ہے اور اس تمام تر جو یہ رابطے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری جوڑ توڑ اس میں کر رہے ہیں کہ متعدد جو سیاسی رہنما ہیں سندھ کے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے مزید کچھ اہم رہنماؤں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں اور آئندہ چند روز میں مسلم لیگ فنکشنل کے مزید اراکین جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پر جو ہے وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دبئی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف بھی دبئی میں بیٹھ کر سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی دبئی میں موجود ہیں اور ڈاکٹر عشرت العباد بھی دبئی میں موجود ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں۔ تو سیاسی حوالے سے اب سندھ پیپلز پارٹی مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے، خاص طور پر کراچی کی جو سیاست ہے آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کی ایک کوشش ہے کہ کراچی سے زیادہ سے زیادہ نشستیں جی اسد صہیب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے بانی رہنما سلیم شہزاد کو کل انسداد دہشت گردی عدالت کے منقسم جج کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ وطن واپسی پر پولیس نے سلیم شہزاد کو ڈاکٹر عاصم کیس میں ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے گڈاپ تھانے منتقل کر دیا تھا۔ سلیم شہزاد کہتے ہیں کہ متحدہ لندن سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے بانی رہنما سلیم شہزاد کو کل انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ سلیم شہزاد کا مختلف مقدمات میں چلان تیار کرتے ہوئے عدالت میں انہیں کل پیش کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کے بانی رہنما متحدہ قائد کے قریبی ساتھی سلیم شہزاد خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایس پی ملیر کی سربراہی میں باری نفری نے جناح ٹرمینل سے انہیں حراست میں لے کر گڈاپ تھانے منتقل کر دیا۔ دوسری گاڑی میں آ جائے سلیم شہزاد کا پاسپورٹ اور سفری دستاویزات بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ ایس ایس پی راؤ انوار کا کہنا ہے کہ سلیم شہزاد کو ڈاکٹر عاصم کیس میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف دہشت گردوں کے علاج کا کیس زیر سماعت ہے، نام ای سی ایل میں بھی شامل ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں سلیم شہزاد نے متحدہ لندن سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ فاروق ستار ان کے ساتھی ہیں، سب کو قریب لائیں گے۔ اب آپ اسے طلاق سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن یہ کہ جب پاکستان زندہ باد میں نے نعرہ لگایا اور چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بات ختم ہو گئی، سب رشتے ختم ہو گئے۔ وطن کون ہے، فاروق ستار یا
सब लोग मुहब्बे वतन है, अगर दिल से मुहब्बे वतनी का मुजाहरा करें। दूसरी जानिब डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन आसिम कायम खानी ने बताया कि सलीम शहजाद के कागजात की जांच पड़ताल की गई। वो बरतानवी शहरी की हैसियत से सफर कर रहे थे। और सलीम शहजाद की गिरफ्तारी पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी लाइम निकले। कहते हैं अगर हुकूमत ने गिरफ्तार किया है तो वो मेहमान हैं और उनकी खातिर तवाज़ो जरूर करेंगे। उधर मुत्तहिदा पाकिस्तान का ये कहना है कि सलीम शहजाद को साथ मिलाने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया, जबकि पाक सरजमीन पार्टी ने कहा है कि उनको पाकिस्तान के कानून पर अमल करना होगा। मुतहदा रहनुमा सलीम शहजाद की पाकिस्तान वापसी और गिरफ्तारी, सियासी रहनुमाओं का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सलीम शहजाद की गिरफ्तारी से ही लाइलम निकले। सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि सलीम शहजाद को किसने गिरफ्तार किया है इल्म नहीं, ताहम अगर हुकूमत ने गिरफ्तार किया है तो इनकी खातिर तवाज़ा जरूर करेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है, जरूर उसके खिलाफ कुछ सिंध गवर्नमेंट के केसेस होंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है तो वो ज़रूर उनके केसेस होंगे, लेकिन ज़रूर गवर्नमेंट का मेहमान है, उसकी खातिर ख्वाह करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हुसैन का न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि सलीम शहजाद पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं तो कानून पर अमल दरामद करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि सलीम शहजाद PSP में शामिल नहीं हो रहे। पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और यहाँ सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक उनको चीजें करने की जरूरत है। दूसरी जानिब तर्जुमान मुत्तहिदा पाकिस्तान ने कहा है कि सलीम शहजाद की आमद और गिरफ्तारी का पता चला, वो तवील अरसे से सियासी सरगर्मियों से लाइलम थे। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ KP के सदर इंतखाब खान चिमकनी का साथियों समेत जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान इस वक्त सामने आया है। आपको बताते चलें कि शमूलियत का ऐलान चिमकनी में जलसे में किया गया है। काफ लीग के KP के सदर इस वक्त जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। अभी आपको बताते चलें कि पेशावर में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है। चिमकनी में वो जलसे में मौजूद थे जहां उनकी जानिब से ये ऐलान इस वक्त सामने आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के KP के सदर इंतखाब खान चिमकनी का साथियों समेत जमात इस्लामी में शमूलियत का ये ऐलान इस वक्त सामने आया, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान पेशावर में किया है। आपको बताते चलें कि चिमकनी के जलसे में मौजूद थे और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है। इससे पहले हम बात कर रहे थे सलीम शहजाद की गिरफ्तारी के हवाले से। IG सिंध ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में SSP मलिर, राव अनवार समेत दीगर पुलिस अफसरान भी शिरकत करेंगे। 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MKM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। सलीम शहजाद के खिलाफ दर्ज मुकदमात का जायजा लेने के लिए पुलिस के बड़ों ने सर जोड़ लिए। IG सिंध AD ख्वाजा ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। मुशावरती इजलास में SSP मलेर समेत दीगर आला पुलिस अफसरान शिरकत करेंगे। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से सलीम शहजाद को इश्तिहारी करार दिए जाने और इनके खिलाफ मुकदमात का जायजा लिया जाएगा। सलीम शहजाद थाना गटाप में मौजूद हैं। और आपको बताएं कि हरिपुर में नून लीगी रहनुमाओं की सियासी मुखालिफिन के खिलाफ घन गरज ने माहौल मजीद गर्मा दिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। झूठ बोलकर दबाव डालने के फैसले हम नहीं मानते। हरिपुर में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन, लीगी रहनुमाओं की दुआदार तकरीरें। दुनिया का कौन सा फ्लैट है लंदन में जिसे बेचो तो बनी गाला में 350 सवा 300 कनाल का घर बन जाता है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कप्तान को नॉन स्टॉप तनकीद का निशाना बनाया। बोले झूठे सियासी जोकर, बेबुनियाद इल्जामात, गालियां, झूठ, बहतान, किरदार कशी कितनी देर सुनेंगे। ऑफशोर कंपनियों पर तनकीद करने वाले ने सबसे पहले ऑफशोर कंपनी बनाई। लोगों का इनकम टैक्स गिनने वाला खुद कितना देता है। कहते हैं ऑफशोर कंपनियां बनाना जुर्म है, अपनी पकड़ी गई तो बोलती बंद हो गई। साद रफीक का कहना था कि 2 जुनूनी इस्लामाबाद पर कब्जा करने गए, एक एक करके चलते बने। ये लोग तरक्की का पहिया रोकने की कोशिश करते रहे। 2 जुनूनी मुल्क पर कब्जा करने आए थे, लेकिन एक एक करके चलते बने। कुदरत की लाठी बहुत बेआवाज है।
लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने इमरान खान को सबसे बड़ा झूठा करार देते हुए कहा कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी और पटवारी कल्चर का खात्मा नहीं करा सकी। तंज करने वाले ये मत भूलें कि इनके दामन कितने दागदार हैं। पहले अपना हिसाब दें, फिर दूसरों से मांगे। जलावतन किया गया, लांडी जेल में रखा गया, तो मॉडल टाउन के घर पे किसका कब्जा था? किसने कब्जा किया था? क्यों कब्जा किया था? क्या आज तक किसी ने इन सवालों का भी हिसाब मांगा है? परवेज रशीद का मजीद कहना था कि गालियां निकालने वाले जान लें कि हम भी जुबान रखते हैं, लेकिन तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। आखिर में नून लीग ने पीटीआई की विकेट गिरा दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के बानी मेंबर मोहम्मद ताहिर उमरजई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पेशावर प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए ताहिर उमरजई ने कहा कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मायूस किया। पार्टी चेयरमैन नजरियाती कारकुनों के साथ मुखलिस नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान को पीएम हाउस में चाय की दावत देंगे, क्योंकि इसके अलावा वो किसी तरह वहां नहीं जा सकते। उसकी ज़हन में इमरान खान साहब का एहतसाब के साथ काम है, नए अकाउंटेबिलिटी के साथ काम है। उसका मकसद एक उसकी ज़हन में अंदर डाला है कि किस तरह पीएम हाउस पहुंचूंगा। तो एक दिन में वैसे आपको दावत दूंगा, आ जाए नवाज शरीफ साहब के साथ चाय पिए, आपका ये शौक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई मुझे बात नहीं है कि प्रैक्टिकली आप इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आपको ले चलेंगे पेशावर, जहां पर सिराजुल हक जलसे से खिताब कर रहे हैं कि उसका दामन साफ है। मैं क्या पूछता हूँ? मैं यही पूछता हूँ कि कौम गरीब हो रही है तो आप कैसे मालदार हो रहे हैं? स्टील मिल कराची का खसारे में है तो आपकी स्टील मिल कैसे मुनाफे में जा रहे हैं? जब आप खुद कहते हैं कि 1980 में मेरे कारखाने 6 करोड़ खसारे में थे, तो चंद साल बाद जब आप हुकूमत में आ गए तो कैसे दिन दुगनी और रात चुगनी आपके कारोबार ने तरक्की की है। अगर आप कहते हैं कि मेरे साथ अलादीन का चिराग है, तो मैं चाहता हूं कि वो अलादीन का चिराग अब कौम को बताया जाए, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा, आपके बैंक अकाउंट्स में इजाफे। और हैरानगी की बात यह है कि अदालत में कहते हैं कि हमने तो तोहफे जमा किए हैं। बाप ने बेटे को तोहफे दिए और बेटे ने बाप को तोहफे दिए, फिर बाप ने बेटे को तोहफे दिए, फिर बेटे ने बाप को तोहफे दिए। तो मैं हैरान हूं कि कोई 52 करोड़ के तोहफे भी एक दूसरे को देते हैं। अगर हलाल की कमाई हूं, कोई भी इसमें इतना इसराफ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात साबित है कि दाल में कुछ काला काला है, और मैं यही चाहता हूं कि दाल एक तरफ हो जाए और काला काला दूसरे तरफ हो जाए, ताकि कौम को पता चले। मेरे भाइयों, मेरा मुतालिबा यह है कि न सिर्फ वजीर आज़म का एहतसाब हो, न सिर्फ उनके खानदान का एहतसाब हो, उन तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने कौम को लूटा है। आज का चोर या कल का चोर बाएं तरफ खड़ा हो, दाएं तरफ खड़ा हो, जो भी झंडा उसके हाथ में हो, लेकिन अगर उसने कौम को लूटा है, मैं चाहता हूं कि उनके हाथों में हथकड़ियां हो। मैं चाहता हूं कि 5-6 हजार ये करप्ट लोग जेलों में नजर आ जाए, जेलों में डाला जाए, और 20 करोड़ आवाम की खुशहाली के लिए अगर 6000 लोगों को जेलों में जाना भी पड़े, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद रखता हूं कि अदालत उज़्मा इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम को इंसाफ देगी। अदालत में मैं फरीक नहीं हूं। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम फरीक है जो करप्शन के खिलाफ है, और दूसरे तरफ हुक्मरान टोला फरीक है जो करप्शन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पेशावर में जलसे से खिताब कर रहे थे और खासी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने हुक्मरान जमात को। जो लोग हमारे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताएं कि बरतानिया में मजहबी इम्तियाज अपने उरूज पर पहुंच गया। मुसलमान वाले नामों को मुश्किलात का सामना है। बरतानवी नाम को 3 गुना ज्यादा इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है।
برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ بی بی سی کے سروے کے مطابق ایک ہی طرح کی قابلیت اور تجربے والے 2 سی وی ایڈم اور محمد کے نام سے 100 کمپنیوں کو روانہ کیے گئے۔ ایڈم کو 12 جبکہ محمد نام والے سی وی پر صرف 4 جگہ سے انٹرویو کی کال آئی۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ برطانیہ میں مینیجر اور پیشہ ورانہ شعبوں میں مسلمانوں کی نمائندگی دوسرے مذاہب سے کم ہے۔ لندن میں مقیم مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کے نام مسلمانوں والے ہی رکھیں گے، اگرچہ وہ جانتے ہیں اس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں یہاں، وقت ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے۔ موسم کے بدلتے رنگ۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری شوکت بسرا نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے، جبکہ ان کا سیکرٹری جاں بحق ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے حوالے سے آپ کو بتانے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا مخالفین کی فائرنگ سے زخمی، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس کے مطابق شوکت بسرا کی ہارون آباد میں ریلی میں جاتے ہوئے سیاسی مخالفین سے تلخ کلامی ہوئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں شوکت بسرا کو سر پر چوٹ لگی، جبکہ ان کے سیکرٹری امتیاز احمد کو گولیاں لگیں۔ شوکت بسرا اور ان کے سیکرٹری کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد پہنچایا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امتیاز احمد دم توڑ گیا۔ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف زرداری نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے شوکت بسرا پر فائرنگ کا نوٹس لے لیا۔ انہوں نے پولیس سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ ادھر وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ 2 چائے بنانے والی کمپنیوں کا جھگڑا تھا، ایک کمپنی کے گارڈ کی گولی شوکت بسرا کو لگی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے واقعے کو سیاسی رنگ دینا انتہائی نامناسب ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحقیقات میرٹ پر ہوں گی۔ چائے ایک کمپنی ہے اور دوسرا ایک چٹان چائے جو ہے وہ ایک کمپنی ہے۔ وائٹل چائے والوں نے آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے انہوں نے ایک کمپلینٹ دائر کروائی چٹان چائے والوں کے خلاف، جو وہ کمپنی ہے، کہ جی ہمارا لوگو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ 63/17 تھانہ ہارون آباد جو ہے وہ وہاں پہ مقدمہ درج ہوا زیر دفعہ 468، 420، 471 جو ریلیونٹ دفعات ہیں۔ اب دیکھیں یہ 2 چائے کی کمپنیوں کا جھگڑا ہے، اس میں کہاں سے سیاست آ گئی؟ اب رخ کریں گے کراچی کا، جہاں افغان کونسل خانے میں فائرنگ کے نتیجے میں 3rd سیکرٹری ذکی عبدو جاں بحق ہو گئے، جبکہ فائرنگ کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کونسلیٹ کے ملازم نے ذاتی دشمنی پر فائرنگ کی۔ کراچی میں افغان کونسلیٹ میں فائرنگ، 3rd سیکرٹری ذکی عبدو جاں بحق ہو گئے۔ کراچی پاور ٹاک کے قریب افغان کونسل میں سیکیورٹی گارڈز نے اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کونسل خانے کے 3rd سیکرٹری ذکی عبدو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس اور رینجرز نے افغان کونسل خانے کو گھیرے میں لے کر فائرنگ کرنے والے سیکیورٹی گارڈ حیات اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ آزاد خان کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر ذاتی رنجش کا واقعہ لگتا ہے، جبکہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے افغان کونسلیٹ میں فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس ساؤتھ کو واقعے سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں لڑکی کو تنگ کرنے والے اوباش نوجوان کی شامت آ گئی۔ سبزی منڈی کے قریب شہریوں نے نوجوان کی خوب درگت بنا ڈالی۔ درگت بنانے کے بعد نوجوان کو شہریوں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں لڑکی کو تنگ کرنے والے اوباش نوجوان کی شامت آ گئی۔ سبزی منڈی کے قریب شہریوں نے نوجوان کی خوب درگت بنا ڈالی۔ درگت بنانے کے بعد نوجوان کو شہریوں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔
और कराची एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बनने लगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी 2 रोजा दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक कप्तान ने सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली बना ली है। PTI चेयरमैन कचरे और पानी के मसाइल पर एहतजाज की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कौंसिल तहलील करके नई कोर कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने 106 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कोर कमेटी मौजूदा सूरत हाल में सियासी हिकमत अमली तय करेगी। PTI की नई कोर कमेटी तश्कील दे दी गई, नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सियासी सूरत से निपटने के लिए सुप्रीम कौंसिल तहलील करके फिर से कोर कमेटी तश्कील दे दी। नई कोर कमेटी 106 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, परवेज खटक और असद उमर समेत मुल्क भर से अहम पार्टी रहनुमाओं को शामिल किया गया है। शरीफ खानदान के खिलाफ पनामा केस से मुतालिक हिकमत अमली भी कोर कमेटी की मंजूरी से तय की जाएगी। और आपको बताएं कि कुछ लोग गैर जरूरी तौर पर अवाम को गुमराह करते हैं। हुकूमत ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए ये उन्होंने कहा। ममनून हुसैन का इस हवाले से ये कहना है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानिए आप इस रिपोर्ट में। बिजली की पैदावार में इजाफे का तस्करा पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, जिस पर तेज़ी से काम जारी है। ये एक ऐसा अज़ीमुश्शान मंसूबा है जिसकी तकमील से पाकिस्तान खित्ते में अहम तरीन मुल्क की हैसियत से उभरेगा, क्योंकि इक़्तिसादी राहदारी के मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाने के बाद पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते की तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगा, बल्कि इससे हमारी सियासी अहमियत में भी इजाफा होगा। आपको बताएं कि अयान अली की अदालत के चक्कर जारी रहेंगे। डॉलर गर्ल अयान अली की उड़न छू की ख्वाहिश पूरी न होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अयान अली उड़न छू को हैं बेताब। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अयान अली का नाम ECL से निकाले जाने का फैसला सुनाया तो डॉलर गर्ल उड़न छू की तैयारियां करने लगी। लेकिन फैसले के कुछ देर बाद ही अपने फैसले पर अमल दरामद रोक दिया, जिसके बाद दिल के अरमान धरे के धरे रह गए। और खबर है कि अयान अली की अदालत के चक्कर जारी रहेंगे। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने अयान अली का नाम ECL से निकालने के फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। वजारत दाखिला के हुकाम का ख्याल है कि अगर ECL से नाम निकाला गया और अयान अली मुल्क से बाहर चली गयी तो वो वापस नहीं आएंगी। अयान अली का नाम ECL में पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर एजाज महमूद कत्ल केस में डाला गया है। कस्टम ऑफिसर एजाज महमूद 2015 में कत्ल हो गए थे। वो इस वक्त मुबैना तौर पर मॉडल अयान अली के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात कर रहे थे। बुलेटिन में अब वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बर्फ का मेला। वेलकम बैक। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग सेकंड एडिशन की खूबसूरत ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई कर दी गई। 5 टीमों के कप्तान भी इस तकरीब में शरीक हुए, जबकि नजम सेठी पुरअज़्म है कि फाइनल जो होगा PSL का वो लाहौर में कराया जाएगा। दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग 2 ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। स्पिरिट ट्रॉफी की तैयारी में 50,000 क्रिस्टल्स इस्तेमाल किए गए। टाइटल ट्रॉफी के अलावा बेहतरीन बैट्समैन की ट्रॉफी हनीफ मोहम्मद और उम्दा विकेट कीपर की ट्रॉफी इम्तियाज अहमद के नाम से मंसूब कर दी गई। बेस्ट बॉलर फजल महमूद ट्रॉफी अपने नाम करेगा। तकरीब रुनुमाई में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PSL नजम सेठी ने कहा कि फाइनल लाहौर में ही होगा। PSL के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट वापस पाकिस्तान लाएंगे। PSL 2 की इफ्तिताही तकरीब 9 फरवरी को होगी, जिसमें 5 टीमों के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मार्च पास्ट करेंगे।
उधर कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान बट की जानिब से कोच ख्वाजा जुनैद पर इल्जामात की बौछार देखने में आई। उनका ये कहना है कि ऐसे कोच के साथ कैसे काम करें जो खिलाड़ियों को गद्दार कहता है। ख्वाजा जुनैद भी इल्जामात के दिफा में मैदान में आ गए। गोलकीपर और कोच में लफ्जी जंग का मामला हॉकी फेडरेशन तक जा पहुंचा। कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान बट ने कोच पर इल्जामात की बौछार करते हुए कहा कि जिस टीम का कोच अपने ही प्लेयर्स को गद्दार कहे वो पाकिस्तान के लिए कैसे मुखलिस हो सकता है। पाकिस्तान के लिए खेले हैं और हमेशा खेलते रहेंगे। ख्वाजा साहब ने मेरे से मुझे 6 महीने में ज़हनी टॉर्चर दिया है जो पिछले टेन्योर के अंदर। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता कौमी हॉकी खेल को बर्बाद ना किया जाए। इल्जामात के जवाब में कौमी हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद का कहना था कि टीम में किस खिलाड़ी को शामिल करना है ये फैसला करना फेडरेशन का काम है। गोलकीपर के इल्जामात से कोई परेशानी नहीं। ख्वाजा जुनैद ने बताया कि सेक्रेटरी PHF ने मामले को खुद देखने का वादा किया है। इमरान बट के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी फेडरेशन खुद करेगी। अब कुछ बात करेंगे मौसम की और आपको बताएं कि बारिशों और बर्फबारी के बाद ठिठुरती सर्दी ने डेरे डाल लिए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया लेकिन मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। स्कर्दू में रिकॉर्ड बर्फबारी से राबता सड़कें बंद और लोग घरों में महसूर हैं, जबकि इलाके में ईंधन की भी किल्लत पैदा हो गई है। आसमान पे रुई के गाले गिरने का सिलसिला तो रुक गया लेकिन सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं आई। शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। बाला इलाकों में बर्फबारी तो रुक गई लेकिन जिंदगी मुंजमद हो गई। स्कर्दू में बर्फबारी का 33 साल रिकॉर्ड टूट गया। बर्फबारी और तोदे गिरने से रास्ते बंद और जराए मवासलात दरहम बरहम होकर रह गया। लोई दीर में सूरज निकलने के बावजूद कड़ाके की सर्दी बरकरार है। यकबस्ता हवा ने मामूलात जिंदगी जाम कर रखे हैं। गिलगित, हुंजा, स्तूर, गजर और दीगर बाला इलाकों में भी बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। शदीद बर्फबारी के बायस 2 राब्ता पुल तबाह और मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गयी। गांछे में भी शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर करके रख दिया। गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी तो थम गई ताहम रास्ते नहीं खुल सके। गलियात और छांगला गली में गुज़िश्ता रोज से सैकड़ों सियाह फंसे हुए हैं। बलाई इलाकों में दुश्वार रास्तों की वजह से इंतजामिया को रिलीफ ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना है। शदीद बर्फबारी के बायस खंबे उखड़ने से मुतादिद शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि लाहौर में सर्दी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के इस हवाले से और मजीद क्या कहना है, जानिए इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों से सर्दी अलविदा होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज कहते हैं कि इस हफ्ते मौसम खुश्क और मतला साफ रहने का इम्कान है। मोस्टली सनी पार्शली सनी टाइप वेदर रहेगा। अर्ली मॉर्निंग में कोई स्लाइटली धुंध हो सकती है स्लाइटली। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी के बायस मौसम में खुनकी तो मौजूद है लेकिन दर्जा हरारत में इजाफा बता रहा है कि अब सर्दी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ रूबा अरूज, न्यू न्यूज़ लाहौर। बर्फ से बना एक नया जहान आबाद हो गया। जापान में 68सालवीं फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फेस्टिवल में दुनिया भर की मशहूर इमारतों को आपको बताएं कि मुजस्मे भी पेश किए गए हैं। मेले में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाले 200 से ज्यादा मुजस्मों में माहिर फनकारों की कारीगरी नुमाया है। स्नो फेस्टिवल एक हफ्ते तक जापान में अपने रंग बिखेरेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बर्फ से बना मुजस्समा भी लोगों की खास तवज्जो का मरकज बन गया है। अहम खबरें अपने जाने न्यूज बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।